Good morning, students. In the last class, we have started a topic that is small business introduction. So, in the small business, what we have studied that in small scale enterprises, basically the countries like developing, it takes the special place because of there is scarcity of capital and the abundance of the labor. Means यहाँ पे क्या होते हैं, जो कैपिटल्स होते हैं उनकी स्कैसिटी होती है, बट जो लेबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो अबंडेंट अमाउंट में होते हैं. तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, दे यूजेस द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल सेविंग techniques. Okay, so we have also studied the meaning of the small scale enterprises or the small business. What is small scale business? Now next, what we have studied that the classification of the small scale enterprises as per the MSMED, that means micro small medium enterprises act, in which it is divided into two: manufacturing enterprises or the service enterprises. As well as we have also studied the role of the small business in the rural areas, in which what we have studied, there are different areas as well as the following benefits in the rural areas. First one is the employment, second is improves economic condition, third is promotion of artistic and creative sense, fourth one is rural development, and the fifth one is mobilization of local resources. Okay, as well as we have also started a topic that is government assistance and the special schemes for industries in the rural backward and the hilly areas. Okay, गवर्नमेंट ने क्या किया, डिफरेंट असिस्टेंस, डिफरेंट हेल्प एज वेल एज बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड की है, लॉन्च की है, बेसिकली फॉर द इंडस्ट्रीज they are in the rural, backward or the hilly areas. Okay, so it is divided into the two parts, that is institutional support, the support which is provided by the government, that is institutional support, and the incentives offered by the गवर्नमेंट टू SSI, मीन्स कुछ ऐसे इंसेंटिव्स कौन है ऑफर किया है, किसने, गवर्नमेंट ने, डिफरेंट स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज और इंडस्ट्रीज. ओके, सो वी हैव स्टार्टेड अ इंस्टीट्यूशनल support in which we have already studied the National Small Industries Corporation. Okay, so now in today's class we are going to start the next institutional support which is provided by the government. This one is the district industries centers. So the DIC programs was started on May 1, 1978 to provide assistance to small scale enterprises at the district level. Okay, so these centers provide all the promotional activities such as identification of the suitable schemes, preparation of the feasibility report, arranging for the credit, etc. These centers promote entrepreneur attitude in the rural areas. DIC means District Industry Center is the institution at the district level which provide all the services and the support to entrepreneur for setting up small scale business, such as identification of the suitable schemes, preparation of the feasibility report, arranging for the credit, etc. Okay, broadly DIC means District Industry Center are trying to bring change in the attitude of the rural entrepreneurs. The DIC is emerging as the focal point of the economic and industrial growth at the district level. Okay, so DIC programs. Okay, DIC programs was started on May 1, 1978. Okay, District Industries Center जो program हुआ था, it was started in first May of 1978. 1978 फर्स्ट मे में स्टार्ट हुआ था to provide assistance to small scale industries at the district level. ये बेसिकली किसके लिए था, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया था, ये असिस्टेंस और हेल्प प्रोवाइड कर रहा था. These center provide all the promotional activities such as identification of the suitable scheme.
ओके, ये सेंटर्स जो ऐसे सेंटर्स ओपन किए गए थे डिस्ट्रिक्ट में, बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को ये जो फैसिलिटीज़ और इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो दीज प्रोवाइड प्रमोशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये क्या थे, जो सारे सेंटर्स थे वो दे प्रोवाइड ऑल दी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, कि कोई भी अगर इंडस्ट्रीज़ है उसको क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की नीड है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी है बिना असिस्टेंस और हेल्प के वो डेवलप हो सकता है या प्रमोट हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ की भी नीड है, सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम, कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च कर रही है उसको आइडेंटिफाई करना। डैट मीन्स कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, कोई भी प्रोजेक्ट है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगी, स्कीम को आइडेंटिफाई करेगी। प्रिपरेशन ऑफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट मीन्स कि उसको अपने जो भी उसके फिजिबिलिटी है, मीन्स जो भी उसने वर्क किया है उसका एक उसको रिपोर्ट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड अरेंजिंग फॉर द क्रेडिट एक्सेट्रा। ठीक है, क्रेडिट जो भी मनी है उसका भी उसको अरेंजमेंट करना है। सो दीज ऑल आर दी सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड किया था, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर प्रोवाइड करता है। सो दीज सेंटर प्रमोट्स इंटरप्रेन्योर्स एटीट्यूड इन द रूरल एरिया। ठीक है, ये जो सारे सेंटर्स होते हैं DIC, वो क्या करते हैं, इंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड जो होता है, उनकी डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स एज वेल एज उनका वे ऑफ डूइंग द वर्क, और वो कैसे कोई काम को कर रहे हैं, ये सारा क्या करता है, प्रमोट करता है। बेसिकली फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। DIC इज़ अ इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। DIC क्या एक इंस्टीट्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशंस है, विच प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज एंड सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर। ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, ऑल सर्विसेज, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स को, फॉर सेटिंग अप दी स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस को सेटअप करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम, कि कौन सी स्कीम उसके लिए सुटेबल है। ऐसे गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च कर देती है, इंट्रोड्यूस कर देती है। तो जिसको जो नीडी है, जिसको अपने बिजनेस को करना है, कंटिन्यू इंडस्ट्रीज सेटअप करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उस स्कीम को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करके उसी पे वो वर्क करता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और क्या करना पड़ता है, जो भी उनका वर्क कर रहे हैं डिफरेंट, उसका क्या है, उनको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड अरेंजिंग फॉर दी क्रेडिट एक्सेट्रा, कि क्रेडिट का अरेंजमेंट भी करना होता है। सो ब्रॉडली DICs आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन दी एटीट्यूड ऑफ द रूरल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, DIC का क्या है, आज वो ट्राई क्या कर रहा है कि जो भी रूरल में एंटरप्रेन्योर्स हैं, डिफरेंट बिजनेसमैन हैं, उनके एटीट्यूड में चेंज करना, ऐसा एटीट्यूड में कि वो भी क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेटअप कर रहे हैं तो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करे, अब सेल्स का प्रमोशन करे, एज वेल एज वो भी प्रमोट हों कि प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज़ हो। तो सारी ऐसी DIC का मेन मोटिव यही है कि जो एटीट्यूड है डिफरेंट रूरल एंटरप्रेन्योर का, उसको चेंज करना। सो द DIC इज़ द एमर्जिंग एज द फोकल पॉइंट फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, DIC का क्या है, एमर्जिंग, एक एमर्ज कर रहा है, मीन्स राइज कर रहा है, कैसे, एज द फोकल पॉइंट, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड पॉइंट है फॉर द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट है, लोग मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है फॉर द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए DICs क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, so the next one and the last topic of this chapter, okay, from this topic the chapter 8 will be completed. Okay, so next topic is incentives offered by the government for industries in the rural areas. Okay, so what are the different incentives which is offered by the government for industries in the rural area? ठीक है, different incentives क्या है, देखो हम लोगों ने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जो गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करिए तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स ऑफर्स, incentives, wait, it's in
incentive, okay, which is offered by the government. Okay, so institutional support we have already completed. So next topic is incentives which is offered by the government. Government क्या करती है, ऑफर करती है for the इंडस्ट्रीज़ के लिए in the रूरल एरियाज़, जो भी क्या है रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं. So after independence some areas in our country are developing rapidly, whereas some areas remain backward and underdeveloped. But balanced regional growth and development is a must due to the following reasons. So first one is to provide employment opportunities in the all areas, to develop the local skills and resources, to restrict the migration of people to urban areas. Okay, so after independence के बाद की बात करते हैं, तो some areas in our country are developing rapidly, कि कुछ एरिया हैं हमारी कंट्री के वो क्या हो रही हैं, रैपिडली ग्रो कर रही हैं और ग्रोथ कर रही हैं, उनका डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हो रहा है, बहुत स्पीड में हो रहा है. वेयर एज सम एरियाज़ रिमेन बैकवर्ड, अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं वो क्या हैं, वो बैकवर्ड ही हैं एंड अंडर डेवलप्ड, वो डेवलप्ड नहीं हुए हैं. बट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ मस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. बट जो रीजनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है उनमें क्या होना चाहिए, जो भी रीजनल इम्बैलेंसेस होता है, मींस जैसे कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कंट्री में या किसी भी स्टेट में वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रिमेन आइडल रहते हैं, वो उनका यूज़लेस होते हैं, वो उनको डेवलपमेंट की बात ही नहीं किया जाता है. तो क्या बात हो रही है कि बट रीजनल बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम एक पर्टिकुलर रीजन का ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे और एक एरिया क्या हो वो आइडल पड़ी हो. ठीक है, तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करता है कि जो ग्रोथ होगा वो क्या बैलेंस्ड हो, इज़ अ मस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. क्यों, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. एंड व्हाट आर द डिफरेंट रीज़न. द फर्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल द एरियाज़. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है. ठीक है, ऑल द एरियाज़ में जो भी एरिया हैं उसमें क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है. टू डेवलप लोकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज, जो भी लोकल स्किल है किसी भी रीजन वाइज या लोकल प्लेस पे जो भी किसी की स्किल है, डिफरेंट स्किल्स होती है लोगों में, उन स्किल्स को क्या करना है डेवलप करना है. एंड रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं उनका क्या करना है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. नेक्स्ट वन इज़ टू रिस्ट्रिक्ट द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अर्बन एरिया. और इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो लोग फॉर दी वर्क क्या करते हैं, वो लोग मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस, उनके माइग्रेशन को क्या करना है रिस्ट्रिक्ट करना है. अगर किसी मतलब विलेज में या रूरल एरियाज़ में अगर वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी हो जाएगी जिसके लिए कोई भी पीपल अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहा है, वो बेसिकली कोई भी अर्बन एरिया में शिफ्ट इसलिए होता है ओनली बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. कि रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं उनके पास कि वो मोर एंड मोर ग्रो कर सके, इसलिए पीपल क्या करते हैं, दे ऑल आर शिफ्टिंग और शिफ्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़. वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्या करते हैं शिफ्ट करते हैं. ओके, सो इसको क्या करना है रिस्ट्रिक्ट करना है. अगर हम यही सारी फैसिलिटीज़ स्किल्स है, इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर हैं, डिफरेंट ट्रेड्स हैं, वो अगर हम एक रूरल एरिया में ही क्या कर देंगे प्रोवाइड कर देंगे, सो जो भी पीपल का मूवमेंट है, माइग्रेशन है, वो क्या हो जाएगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. और वो पीपल क्या है या कोई इंडिविजुअल वो वहीं पे रह के रूरल एरिया में ही रह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है और इनकम भी उसकी इंक्रीज़ हो सकती है. ओके, सो मेन रीज़न क्या है कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ की बात क्यों हो रही है, ओनली बिकॉज ऑफ दी कि अगर क्या है कुछ पीपल रूरल से अर्बन में चले गए तो क्या है वो, इसमें क्या हो गया रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए ना, कि हमें ऐसा करना है कि रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट हो, तभी हम बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कि ऐसा नहीं कि अर्बन एरियाज़ क्या है बहुत ज़्यादा डेवलप करता जा रहा है और रूरल एरिया का एकदम वो डाउन होता चला जा रहा है. इसलिए बात हो रही है कि बैलेंस्ड ग्रोथ होना चाहिए.
इन दैट केस अब जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, ऑल एरिया में होनी चाहिए। डेवलप द लोकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज, जो भी डिफरेंट लोकल स्किल्स हैं किसी इंडिविजुअल में, जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, पॉटरी पे कुछ करता है, पेंटिंग करता है, तो उन लोकल स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, उनको आइडेंटिफाई करना है और जो भी लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट इज टू रिस्ट्रिक्ट द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अर्बन एरियाज़, और जो भी अर्बन एरिया में लोगों का माइग्रेशन हो रहा है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना है। ओके, सो टू हैव द बैलेंस रीजनल ग्रोथ, to have the balanced regional growth and for the development of the rural backward and hilly areas, the government has provided the following incentives. Okay, to have a balanced regional growth means balanced regional growth के लिए क्या करना है, and for the development of the rural backward and hilly areas, और किसके डेवलपमेंट के लिए, रूरल बैकवर्ड, जो भी रूरल एरिया में बैकवर्ड एरिया है और हिली एरियाज़ है जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ इंसेंटिव्स क्या करने चाहिए, प्रोवाइड उस एरिया में भी करने चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इन दीज एरिया एट द कंसेशनल रेट। ओके, सो जो भी है इस एरिया में क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लैंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, इन दीज एरिया एट द कंसेशनल रेट मीन्स डिस्काउंटेड रेट पे मिलना चाहिए, कि जो प्राइस है उसका क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसको कंसेशन प्रोवाइड करना चाहिए, कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहिए। लैंड का ये नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर लैंड क्या है 10 लाख की है तो वो उसको 10 लाख पे करे, इस पर क्या कर दे, गवर्नमेंट कह सकती है कि आपको इस पर 20% कंसेशन मिलेगा। ठीक है, मतलब 10 लाख का 20% आपको क्या करना पड़ेगा, पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरिया। सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे भी प्रोजेक्ट लेने चाहिए जो बैकवर्ड एरिया में भी वर्क करें। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो भी प्रोजेक्ट है, पब्लिक से मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं वो बैकवर्ड एरिया में भी करे। ऐसा नहीं कि वो बस बेसिकली वो ऐसे एरिया को ही करे जो बहुत पॉश एरिया हो, ऐसा नहीं, वो बैकवर्ड एरिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, बैलेंस्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कोई भी एक साइड, एक भी कोना हम लोग छोड़ नहीं सकते कि हम ये बोल दें कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। नहीं, बैलेंस की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर जो प्रोजेक्ट हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ में भी ओपन करना चाहिए। थर्ड वन इज़ इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स इन दी बैकवर्ड एरियाज़। ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल इस्टेट्स जो होते हैं कि जो बिल्डिंग्स का काम करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोजेक्ट लेते हैं वो क्या होने चाहिए, वैसे स्टेट्स क्या हैं बैकवर्ड एरिया में भी होनी चाहिए। जो बिल्डिंग्स बनती हैं ये सारे रियल इस्टेट्स के वर्क होते हैं ना, जो उसमें लोग लगे रहते हैं, तो ऐसे वर्क्स क्या हैं बेसिकली बैकवर्ड एरिया में भी काम होनी चाहिए। कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो कोई अपने में अंडर ले ले, गवर्नमेंट अंडर में ले ले, और उस पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। ओके, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट किसका होना चाहिए, जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हो, मींस ट्रांसपोर्टेशन का मींस कि डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के जो भी होते हैं ना रिसोर्स, उसके थ्रू मींस ट्रेन, रोड्स के थ्रू ये सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो, सो डैट जैसे क्या हो, कुछ भी वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ हो वो क्या कर सकते हैं, उसको मार्केट तक पहुँचा सकते हैं। बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, मींस अगर किसी भी इंडिविजुअल को अपने स्टार्टअप को करना है, अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है, या उसको उस एग्जिस्टिंग बिज़नेस में, इंटरप्राइजेस में कुछ फ़ंड की ज़रूरत है फॉर द मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, वो बैंकिंग सर्विस ले सकता है, बैंक जाके फ़ंड को ले सकता है। पावर सप्लाई एक्सेट्रा, पावर सप्लाई मींस इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ऑफ़र करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ऑफरिंग द टैक्स कंसेशन टू यूनिट्स लोकेटेड इन द बैकवर्ड
एरियाज, ठीक है। टैक्स कंसेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए बैंक को टू यूनिट्स लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। डिफरेंट टैक्स कंसेशन कैसे होना चाहिए, जो भी बैकवर्ड एरियाज़ में हैं, ठीक है। बैकवर्ड एरिया में कोई भी इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं या कोई भी बिल्डिंग बन रही हैं, तो इस जगह पे क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स में कंसेशन करना चाहिए। अगर वो लोग वहाँ पे कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही हैं या जो भी, तो अगर नॉर्मल एरियाज़ में 10% लग रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्रीज़ हैं या कोई बिल्डिंग है या कुछ कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये टैक्स को रिड्यूस करके 8% या 6%, इट इज़ अप टू दी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स क्या है, कंसेशन प्रोवाइड करना चाहिए टू द यूनिट्स। यूनिट्स मीन्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरिया, ठीक है। अगर वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही हैं, उनका जो भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अगर उनका 40 लाख का हो रहा है, तो इस पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इस पे क्या होता है, इस 40 लाख पे जो भी इनकम होती है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। हर एक को टैक्स पे करना एकदम मैंडेटरी है। ये टैक्स किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस कंडीशन पे कंसेशन प्रोवाइड कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टैक्स लगता हो इस पर इनके पूरे टोटल प्रॉफिट पे 18% का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, दे विल टेक ओनली 14%, मीन्स 4% का वो कंसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर दोज यूनिट विच आर established in the backward area, okay. So next one is finance at the concessional rate to industry to set up in these areas, ठीक है। जो भी फाइनेंस की फैसिलिटीज़ हैं, अब कोई भी फाइनेंस लेता है, मतलब कोई भी फंड लेता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उस पर भी लोन पे, कोई भी लोन लेगा तो उस पर भी टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ क्या हो रही हैं, सेटअप हो रही हैं बैकवर्ड एरिया में, हिली एरियाज़ में, उस पर भी क्या करना चाहिए, फाइनेंस पे भी कंसेशन प्रोवाइड कर देना चाहिए। सो इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर देगी डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, तो क्या होंगे, पीपल भी मोर एंड मोर इनकरेज होंगे कि वो अपने जो भी इंडस्ट्रीज़ और यूनिट्स को सेटअप कर रही हैं वो बैकवर्ड और हिली एरियाज़ में भी करें, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ग्रांटिंग सब्सिडीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम्स, ओके। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि सब्सिडीज़ मीन्स इट इज़ द फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल, ओके। गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स अगर कोई भी इनपुट्स मीन्स रॉ मटेरियल अगर वो कोई परचेस कर रहा है, वो कितने का है, 2000 का है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पर सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देगी, तो यही आपको 1600 में मिलेगा, तो 400 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट अपनी ओर से बेयर करती है। इट इज़ ओनली बिकॉज कि लोग क्या हो, प्रमोट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, इंडस्ट्रीज़ डेवलप करें, ग्रोथ करें, कंट्री का डेवलपमेंट करें। तो ये सारा क्या है कि बेसिकली गवर्नमेंट का क्या है, सब्सिडीज़, गवर्नमेंट भी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। सो सम ऑफ द सब्सिडीज़ ऑफर्ड आर these, or are the some subsidies which is offered by the government, that is transport subsidy, capital subsidy, infrastructure subsidy, okay. What is transport subsidy? For carrying raw materials and the finished product in these area, ठीक है। अगर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो वो सब्सिडी किस पे होगी, ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी। मीन्स अगर कोई गुड क्या है, वाराणसी से आप समझ लो इलाहाबाद जा रहा है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है 5000, ठीक। तो उस 5000 में गवर्नमेंट का क्या करेगी कि सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, मतलब रॉ मटेरियल या कुछ भी जा रहा है, तो इस कंडीशन में किसी भी इंडिविजुअल को 3500 देना पड़ेगा, और जो 1500 हो गया उसको वो गवर्नमेंट क्या कर देगी, कंसेशन दे देगी, मीन्स फ्री कर देगी, सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, ओके। सो इट इज़ दी ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी फॉर द कैरिंग और द रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट इन दिस एरिया, कि जो बेसिकली इलाहाबाद में भी ऐसे एरिया में जा रहा है, मीन्स बेसिकली उसी एरिया में देगी जो क्या हो, बैकवर्ड हो, मतलब उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ। वाराणसी से कोई भी गुड्स क्या जा रहा है, एकदम विलेज वाले पार्ट में जा रहा है, जहाँ पे बैकवर्ड है, वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ से अगर कोई गुड्स क्या है
वहाँ पे जाता है। यहाँ से कोई ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू 5000 का अगर उसका बिल है तो उस पर क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी। मीन्स ऑलमोस्ट 3500 उसको देना पड़ेगा और 1500 का वो सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल सब्सिडी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड असेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप इन द बैकवर्ड एरिया। ओके, ठीक है। जो कैपिटल सब्सिडी मीन्स कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी कैपिटल पे फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड असेट, कि जो भी अपना कैपिटल है, फंड है, वो इन्वेस्ट कर रहा है किसमें, फिक्स्ड असेट्स, जो भी जितने भी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, दीज ऑल आर दी फिक्स्ड असेट। ओके, उस फिक्स्ड असेट पे इन्वेस्ट करने के लिए जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल, कोई एंटरप्रेन्योर, बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप हो रही हैं, इन दी बैकवर्ड और दी हिली एरियाज़, उस कंडीशन पे भी सब्सिडी प्रोवाइड होगी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दी कैपिटल असेट्स। कि कोई भी अगर मशीनरी है आपकी 5 लाख की, ओके, वो क्या है, कोई इंडिविजुअल अपना एक इंटरप्राइजेस ABC लिमिटेड करके वो विलेज बैकवर्ड एरिया में ओपन करने जा रहा है, ठीक है, कोई भी एक रूरल एरिया में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर वो बताएगी कि मैं क्या, कोई भी इंटरप्रेन्योर है ABC लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, वो क्या बोलेगा कि मैं अपना ओपन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ बैकवर्ड एरिया में, 5 लाख की मेरी एक मशीन हो रही है, तो इस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देगी। मीन्स हो सकता है इसको अब 4,50,000 ही बस पे करना पड़े। ये 50,000 का 50,000 का गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी। ओके, 5 लाख की वो कोई मशीनरी परचेज़ करना चाह रहा था और वो बैकवर्ड एरिया में ही उस क्या कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर रहा है, इन दैट केस गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दी सब्सिडी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट bears द अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ पे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, डिफरेंट स्कूल्स हो गए, बैंकिंग सर्विसेज हो गए, वेयर हाउसिंग हो गया, स्टोरेज फैसिलिटी हो गई, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर भी सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द backward area have been initiated by the government. Okay, different special program has government has launched or instead introduced for the development of the backward area. Backward area के development के लिए government ने क्या किया, बहुत सारे special programs को introduce किया है, which has been initiated by the government. Okay, it has been initiated by the government. Government क्या करती है, special program बेसिकली जो भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, जो बैकवर्ड एरिया में हैं, हिली एरियाज में, डिफरेंट टाइप ऑफ असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड बाय दी गवर्नमेंट। ओके, कैसी कैसी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट, सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, फाइनेंस एट द कंसेशनल रेट, फाइनेंस प्रोवाइड जो करेगी वो कंसेशनल रेट पे होगी, टैक्स पे कंसेशन होगा कि जो भी उनके प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा उस पर भी कंसेशन होगा, एज वेल एज़ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट करेगी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स जो भी हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं या लैंड पे जो भी बिल्डिंग्स बन रही है कोई भी, एज वेल एज़ कोई भी इससे फंक्शनिंग कर रहा है, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज़ जो भी सेटअप हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ जो भी, तो उस पर भी इंस्टेब्लिशमेंट के भी हेल्प करेगी। लोकेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट इन दी बैकवर्ड एरिया, लोकेशन शो करेगी कि डिफरेंट इंसेंटिव्स की जो भी पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट है बैकवर्ड एरिया पे, एज वेल एज जो भी अवेलेबिलिटी है लैंड की इन दीज एरिया एट द कंसेशनल रेट पे क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। ओके, सो इट इज़ योर एंड ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स वन time recapitulate all of things what we have studied in this chapter. So in the 8th chapter we have studied the entrepreneurship development. What is the concept of the entrepreneurship development? What is entrepreneurship? So entrepreneurship is a
process which is done by the any entrepreneur to take a one result or the outcome, that is enterprises. Okay, so next we have studied the what is the need and importance of the entrepreneurship. Yes, why there is need for the entrepreneurship. Next one is the process of the entrepreneurship, in which we have studied the self discovery, identifying opportunities, generating and evaluating ideas, planning, raising startup capital, startup growth, harvest. Next topic is Startup India schemes, and what is the meaning of the startup, various schemes and ways to fund startup by the government of India. What are the different schemes? So in which we have studied no inspection, registration, income tax exemption, capital gain tax exemptions. Next one is benefit in the patent and the intellectual rights, property, funding schemes for the startup, and there were also the 10 funding options for the startup, in which we have studied self funding, crowdfunding, get angel investment, get venture capital for your business, raise money through the bank loans, get business loan from the NBFCs, non-banking financial companies, as well as government programs that offer startup capital, central government schemes and the state government schemes. Next topic is intellectual property rights and the entrepreneurship. So what is intellectual property, as well as we have studied there are intellectual property includes the copyright, patent and the trademark. The next topic we have completed, that is small business, in which we have studied the introduction, meaning of the small scale business, what is the role of the small business in the rural Indias, the government assistance and special schemes for the industries, basically they are in rural, backward and the hilly areas, in which it has divided into two categories. First one is institutional support, in which we have studied the two support which is provided by the government, that is National Small Industries Corporation, and the next one is the district industries centers. And next topic and the last topic of this chapter is incentives offered by the government for industries in the rural area. Okay, so it's all about your chapter, as well as it's all about your today's class. We will continue further and we will come with the next topic or the next chapter in the next class. Okay, thank you.